Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and we are discussing projectile motions. Today we'll end this chapter. Okay, so let's take some questions. This question was asked in CSC 2009. A shot is fired with velocity u at an elevation a, strikes a point P on the horizontal plane through the point of projection. If point P is receding from the gun with velocity v, show that elevation must be changed to b, wherein the b and a are linked by this relationship. So basically what question is trying to convey is this. This is the point from where a shot is fired, ठीक है, with velocity u. Okay, let us say that अच्छा, at an elevation a. Okay, and this is strike at a point p in horizontal plane. ठीक है, so this is some point p, so it is striked here. ठीक है, if point p is receding from the gun with velocity v, अब now this point is receding with velocity v, then to strike at this P, we need to change the elevation of this angle, or we have to change the angle of projection. So that angle of projection is being asked. So it's a simple question in fact. Range के concept से we can deal with this question. ठीक है. So let us solve this. So the question, what it says, that initially when the angle of elevation or angle, in this case this is angle of projection, if that is if this angle is a and velocity is u, then it hits at p. ठीक है. But if this p starts moving with velocity, this p starts moving with velocity v, again the velocity remains same here u, but the projection has to be changed to some b. ठीक है. Then what will be the relationship between b and a that we are able to strike at p? ठीक है. देखो अगर इसमें क्या किया जाए, अगर इस p को स्टैटिक कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, देखो इसकी वेलोसिटी देखी जाए, दिस इज u cos b एंड दिस डायरेक्शन दिस विल बी u sin b. ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, u cos a एंड दिस इज u cos b. अब देखो लेट अस से दिस इज op, so op is nothing but range. So range is given by what, 2u square sin a cos a by g, right? Because the angle of elevation, the angle of projection is a, initial velocity is u, so this is the formula in fact. और इसको देखो जो range है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 times u sin a u cos a by g, ऐसा ही बोल सकते हैं फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन a, और वी कैन से दिस इज ट्वाइस वेलोसिटी या वेलोसिटी component of u in x direction, this is y direction, and component of u in x direction by g, ऐसे लिख सकते हैं. So range can be given by twice of initial angle in x direction, initial velocity in x direction, initial velocity in y direction divided by z. This is useful. This will be useful in case when the target is moving. ठीक है, so then we can use it directly. अच्छा देखो ये है, अब इस केस में क्या है कि ये मूव कर रहा है, अगर इसको यहाँ पे रेस्ट पे ले आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे या जहाँ से हम ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी अप्लाई करनी पड़ेगी. भाई रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं. ठीक है, सो देखा जाए तो दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग कि यहाँ पे जो है ये जो पार्टिकल है ये इस डायरेक्शन में इसकी मोशन u कोस वेलोसिटी u कोस b माइनस v है, और जो y डायरेक्शन है उसमें तो u साइन b रहेगा, बिकॉज इन दैट डायरेक्शन देर इज नो कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट p. ठीक है, सो दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग दिस. अब हमें हिट करना है इसको इस वेलोसिटी कंपोनेंट से. अब ये पॉइंट p क्या हो गया, फिक्स हो गया यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस फिक्स कर दी, मीन्स ये डिस्टेंस आर ही रही. ठीक है, तो अब इसको हमें हिट करना है, तो यहाँ पे आर क्या होगा, इन न्यू कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, सो आर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स यू एक्स यू वाई बाई जी, ऐसे लिख सकते हैं रेंज को. सो 2 टाइम्स यू एक्स क्या है, यू कोस बी माइनस वी एंड यू साइन बी, दैट इज वाई कंपोनेंट डिवाइड बाई जी. ठीक, आई होप समझ में आता है नाउ.
अब देखो, let us call this as equation, this is r of course, let us call this equation 1 and this is 2, ठीक है। so from equation 1 and 2, इनसे what we can say, दोनों को इक्वेट कर दो, so this 2u square sin a cos a by z, that should be equals to 2 u cos b, अगर sin b को अंदर ले जाएं तो sin b माइनस v sin b, u तो है यहाँ पे, डिवाइड बाई z, ठीक है। आई होप समझ में आता है। सो ये तो हो गया अब, ठीक है। अब इसको देखो, इसको यहाँ से एक यूज तो हो गया कैंसिल, एक यू यहाँ से गया, ठीक है, जी से जी कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, u sin 2a इज इक्वल टू u, दिस इज sin 2b, दिस इज sin 2b राइट, ट्वाइस से मल्टीप्लाई होगी, माइनस 2v sin b, ऐसा बोल सकते हैं। और अगर u से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया जाए तो दिस इज sin 2a इक्वल्स टू sin 2b माइनस 2v डिवाइड बाई u sin b, यही हमें प्रूव करना है आई थिंक, ठीक है। और इसको थोड़ा और रीअरेंज किया जाए तो sin 2b इज इक्वल्स टू sin 2a प्लस 2v बाई u sin b, हैंस प्रूव्ड। आई होप ये समझ में आता है। सो दिस वाज इजी क्वेश्चन, इनफैक्ट रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना था, ठीक है। अच्छा इसमें देखो, ये इस टाइप से क्यों लिख पा रहे हैं हम, इसमें देखो अगर इनकेस रेंज ना करके सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग तो भी कर सकते थे। देखो इसमें एक्स डायरेक्शन में अगर लिखेंगे तो एक्स क्या होगा, v cos b माइनस v, दिस इज द वेलोसिटी इनटू t, बिकॉज इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी तो है नहीं। और t क्या होगा, t इज नथिंग बट, t तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं, टोटल टाइम t मीन्स वर्टिकल हाइट जीरो हो गई, ठीक है, वर्टिकल जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो जीरो हो जाएगी, तो दैट इज जीरो इक्वल्स टू u साइन b मीन्स y डायरेक्शन वेलोसिटी है t माइनस 1/2 gt स्क्वायर, यहाँ से विल गेट द t, उसको यहाँ पुट करेंगे देन विल गेट दिस ओनली, ठीक है। आई होप समझ में आता है। सो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, दिस वाज इजी क्वेश्चन इनफैक्ट, और रिलेटिव वेलोसिटी से अगर करते हैं देन इट्स इजी, ठीक। अब देखो दिस क्वेश्चन, if distance between axle trees of the front and hind wheel of a vehicle, ठीक है, of radii r1 and r2 is x, okay, and a mud particle driven from the highest point of the hind wheel settles on the highest point of the front wheel, find velocity of vehicle, ठीक है। सो बेसिकली इस टाइप से कुछ है, ये मान लो हिंड एक्सल ट्री है, ये मान लो फ्रंट व्हील है, ठीक है। तो बेसिकली मान लो इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा। सो इसमें देखो फ्रंट एंड हिंड व्हील की रेडियस दी हुई है, r1 इज फॉर फ्रंट एंड दिस इज r2, ठीक है। तो देखो अगर इसकी लाइन को ज्वाइन कर दी जाए दोनों के सेंटर को तो इस टाइप होगी, हॉरिजॉन्टल तो होगी नहीं बिकॉज देयर रेडियस इज नॉट सेम, ठीक है। तो अब क्या किया जा सकता है, अगर इसमें ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात की जाए इसकी, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया जाए तो देखो ये टोटल r1 है, ये टोटल r2 है, सो इसका मतलब ये क्या होगी, दिस इज नथिंग बट r2 माइनस r1, यहाँ पे वी इट इज गिवन दैट r2 इज ग्रेटर देन r1, ठीक है। अब बस अगर ये है, ये दिस विल बी 90 ऑफ कोर्स, अगर इसको मान लो O1 बोल देते हैं सेंटर को, इसके को O2 बोल देते हैं, सो O1 O2 क्या होगा, O1 O2 इज गिवन एज x, डिस्टेंस बिटवीन, देखो बिटवीन एक्सल ट्रीज ऑफ द फ्रंट एंड हिंड व्हील, दोनों व्हील का जो एक्स जो सेंटर है बेसिकली उनके बीच की डिस्टेंस x है। अब एक मड पार्टिकल यहाँ से जो है, यहाँ से जो है ये उड़कर यहाँ पे आ जाता है, इट सेटल्स हियर, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इस जो ये व्हीकल है, जो इन दोनों व्हील जो जिस व्हीकल के इनफैक्ट उस व्हीकल की वेलोसिटी हमें बतानी है, ओके। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन इनफैक्ट, सो लेट अस सॉल्व दिस। ओके सो बेसिकली ये हमारे पास हो गए व्हीकल के टायर्स बेसिकली, ठीक है। ये रेडियस मान लो r1 है, ये रेडियस जो है ये r2 है, ठीक है, दिस इज r2, और ये इनके सेंटर को ज्वाइन कर दिया जाए,
ठीक है, दिस सेंटर O1 एंड दिस इज सेंटर O2. O1 O2 इज गिवन एज x. ठीक है, तो इसको अगर इससे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, दिस इज 90, दिस इज R2 minus R1. ऑफ कोर्स लेट अस कॉल दिस पॉइंट C. सो O1C इज R2 minus R1. ठीक है, तो तब दिस इज R2 minus R1 एंड दिस इज 90. सो ये हाइपोटेन्यूज हो गया. इसको अगर CO2 की बात करें, CO2, तो वो क्या हो जाएगी, बेसिकली दैट इज O1 O2 का स्क्वायर माइनस O1C का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर ये हो जाएगा. और वी कैन से CO2 इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर, O1 O2 तो एक्स स्क्वायर माइनस O1C इज R2 minus R1 का स्क्वायर का रूट. सो हमारे पास ये आ गई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. तो जब ये मड पार्टिकल यहाँ से देखो यहाँ पे आगे सेटल हो रहा है, तो ये बेसिकली अगर ये जो भी हमारे पास व्हीकल है, इसकी वेलोसिटी v है. ठीक है, तो अगर इसको रेस्ट पे ले आते हैं हम, व्हीकल के रिलेटिव अगर इस पार्टिकल की डिस्टेंस देखी जाए, तो फिर जो व्हीकल है वो रेस्ट पे आ गया रिलेटिव टू जो भी इसकी वेलोसिटी मान लो कुछ v1 निकल गई. सो उस v1 से फिर जब ये यहाँ पे आएगा तो इसकी डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगी, CO2. ओके, सो लेट, या पहले ऐसा करते निकाल लेते हैं इसको. देखो ये व्हीकल है, ठीक है, प्योर रोलिंग यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे. ठीक है, तो ये अगर सेंटर है, मान लो इसकी रेडियस R2 है. अगर मान लो इस ये जो व्हीकल है इस पे अगर इसकी वेलोसिटी मान लो v मान ली जाए, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है यहाँ पे. ठीक है, तो देखो ये इस टाइप से रोटेट हो रहा होगा, राइट. तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी यहाँ इस पॉइंट की तो जीरो होगी. इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये डिस्टेंस R2 है तो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट v minus R2 omega, this should be 0. Let omega be the angular velocity. ठीक है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है. तो प्योरोलिक से वी कैन से कि यहाँ से v इक्वल्स टू R2 ओमेगा. ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर यहाँ पे वेलोसिटी v है इस डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट पे क्या होगी, v प्लस R2 ओमेगा, राइट. प्योरोलिंग कंडीशन वी कैन से दैट पर R2 ओमेगा इज v, सो दिस इज 2v इन फैक्ट. सो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी इस पॉइंट की वो 2v होगी. ठीक है, बट ये खुद जो है इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है, तो अगर इसके रिलेटिव वेलोसिटी देखी जाए, ठीक है, तो क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मड पार्टिकल. ठीक है, रिलेटिव टू व्हाट, रिलेटिव टू जो व्हीकल है हमारा. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, 2v हो रही है उस पॉइंट पे और व्हीकल की वेलोसिटी v है, सो 2v माइनस v. ठीक है, सो दिस शुड बी इक्वल्स टू v. ठीक है, सो बेसिकली v जो है दैट इज वेलोसिटी ऑफ दिस मड पार्टिकल एंड दिस इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. आई होप यहाँ कोई इश्यू नहीं होना चाहिए. देखो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो प्योर रोलिंग हमने डिस्कस की थी जैसे. ठीक है भाई, इसका जो है यहाँ पे जो सेंटर मास होगा वो v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. अब ये जो पॉइंट है ये ऐसे रोटेट हो रहा है. अगर ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, देन ये इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, v प्लस v के ऑपोजिट है, सो माइनस R2 ओमेगा. बट दैट हैज टू बी जीरो बिकॉज दिस पॉइंट इज स्टेशनरी फॉर प्योर रोलिंग, दैट इज द कंडीशन. सो यहाँ से R2 ओमेगा इज v. अब इस पॉइंट पे क्या होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, सो v और इस टाइप से पूछा है इसका वेलोसिटी का, तो v प्लस R2 ओमेगा दैट इज 2v, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट. अब ये जो पार्टिकल जैसे यहाँ से जाएगा तो 2v इसकी वेलोसिटी होगी, बट रिलेटिव टू दिस व्हीकल अगर देखा जाए तो क्योंकि व्हीकल इटसेल्फ इज मूविंग विद वेलोसिटी v, सो 2v माइनस v विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रिलेटिव जैसे ही करेंगे तो ये व्हीकल हमारे लिए रेस्ट पे आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा. अब ये पार्टिकल जब यहाँ पे आएगा तो इसको ये CO2 डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, सिंपल एज इट इज. और देखो वर्टिकल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा होगा, ये यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है. इसका मतलब वर्टिकल डिस्टेंस इसकी क्या है, ये है, इसकी वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवलिंग ये हो रही है. तो ये क्या है, देखो ये टोटल लेंथ 2r2 है, ये 2r1 है भाई. ये जो लेंथ है दिस इज 2r2 एंड ये जो लेंथ है ये है 2r1. इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है इसको अगर p बोल दिया जाए, इसको q बोल दिया जाए, ये q बोल देते हैं, चलो इसको q डैश बोल दो, इसके पैरेलल में है. सो p q डैश क्या हो जाएगा,
दिस इज नथिंग बट 2r2 माइनस 2r1। आई होप समझ में आता है, सिंपल है। ठीक है, अब देखो बस, अब तो सिंपल है। अब इसमें ये क्या हो गया कि देखो इसकी जो x डिस्टेंस है वो तो इसने ट्रेवल की है CO2, और y डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है PQ1। ठीक है, तो देखो अगर x डायरेक्शन की बात की जाए, सो x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या है, v है, वेलोसिटी ऑफ मड पार्टिकल रिलेटिव टू व्हीकल। ठीक है, ये तो हमने लिखा है वैसे, व्हीकल, दिस इज v। ठीक है, सो देखो x डायरेक्शन में अगर मोशन लिखेंगे तो देखो x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, पर क्योंकि एक्सलेशन तो x डायरेक्शन में कुछ है नहीं, और ये जो है लेट्स से दिस इज x डेश, तो ये जो है हमारे पास, ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, दिस इज CO2, तो CO2 इज इक्वल्स टू ut, मींस इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी रिलेटिव टू व्हीकल इज v, vt प्लस जीरो, बिकॉज एक्सलेशन है नहीं। अब ये t है, दिस इज द सेम t जिस टाइम में वो वर्टिकल डिस्टेंस अगर y डायरेक्शन में देखा जाए, y डायरेक्शन में अगर लिखी जाए इक्वेशन, y डायरेक्शन में क्या होगा, y डायरेक्शन में 2r2 माइनस 2r1 ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और y डायरेक्शन में इनिशियली देखो ये जो मड है इस टाइप से आ रहा है, तो ऐसे आ रहा है, इसकी y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है ही नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में v है, तो इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। ठीक है, ये हमारे पास यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। सो दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो इसने ये ट्रेवल की है जो कि 2r2 माइनस 2r1 है। ठीक है, जो PQ डैश थी इनफेक्ट, दिस इज PQ डैश। ठीक है, दिस इज जीरो प्लस हाफ at स्क्वायर, a तो क्या हो गया माइनस c और t स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से व्हाट वी कैन से, अच्छा ये तो ऐसे ही आ रहा है ना, सो ये तो प्लस ही हो गया, इस डायरेक्शन में तो प्लस ही है। जो एक्सेलरेशन है वो अगर इस y डायरेक्शन में नेगेटिव में लिखा जाए तो ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट t स्क्वायर इज नथिंग बट 4r2 माइनस r1 डिवाइड बाई z, और वी कैन से दैट t इज ट्वाइस ऑफ रूट r2 माइनस r1 बाई z। ठीक है, तो यहाँ से व्हाट वी कैन से, ये जो t है इसकी वैल्यू यहाँ से वी कैन पुट इन दैट x डायरेक्शन इक्वेशन, दिस इज दैट। अब ये CO2 क्या है, CO2 इज नथिंग बट x स्क्वायर माइनस r2 माइनस r1 का स्क्वायर का रूट, ये हमने देखा। सो यहाँ से देखो अगर ये t की वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाए, और यहाँ से वी कैन से दैट v इज इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस r2 माइनस r1 का स्क्वायर डिवाइड बाई t। ठीक है, तो यहाँ से वेलोसिटी क्या आ जाएगी, यही हमें पूछा है, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, तो दिस इज सिंपल। नाउ दिस इज जो वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगी, v इज इक्वल्स टू यहाँ से रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस r2 माइनस r1 का स्क्वायर डिवाइड बाई t, दैट इज 2 रूट r2 माइनस r1, और ये रूट में इजी है तो इसको ऐसे लिख दिया जाए। सो दिस इज द वेलोसिटी वी नीड, दिस इज द आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आता है। लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन इनफैक्ट। ठीक है, ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट यूज करने थे। ओके, नाउ 2 पॉइंट, अच्छा इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, विल डिस्कस फर्स्ट दैट देन विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। प्रोजेक्शंस टू हिट अ गिवन पॉइंट। ओके, सो बेसिकली मान लो ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया किसी पार्टिकल को, ये कोई पॉइंट P है, लेट्स से इसकी कोऑर्डिनेट x, y है, सो इसको हमें हिट करना है। ठीक है, मान लो वी नो दैट देयर इज दिस वेलोसिटी u by which object is projected to hit at point P. Let us say angle of elevation is alpha. Okay, let us say this is x-axis and this is y-axis. ठीक है, so then what will be the direction? Direction means alpha and least velocity u minimum कितनी होनी चाहिए so that we could hit this point. ठीक है, so basically ये will discuss this that there are possibilities of two directions, means there will be two directions through which we can hit this point for a given velocity u. ठीक है, and we can calculate the least velocity if we throw the ball with greater than or equal to that velocity, then we'll be able to hit at this point P. Okay, so let us discuss a simple topic in fact. ठीक है, so हमने पढ़ा अभी तक सब उसी का यूज है, वैसे कुछ नया तो आएगा नहीं इसमें। ठीक है, so देखो
we know that projectile trajectory is given by y equals to tan. Let us say this is the alpha projection, angle of projection is alpha, so tan alpha x minus gx square divided by 2u square cos square alpha. This I have discussed. ठीक है. Now यहाँ से देखो, अब ये ट्रेजेक्ट्री है, ऑफ कोर्स p, दिस पॉइंट p, the as p point also lies on this trajectory. भाई अगर p पॉइंट ट्रेजेक्ट्री पे लाई नहीं करेगा देन हाउ कुड वी हिट दैट पॉइंट. अगर दैट पार्टिकल इज एबल टू हिट दैट पॉइंट मींस दिस पॉइंट p मस्ट बी लाइंग ऑन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, द प्रोजेक्टाइल. ठीक है. सो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसके कोऑर्डिनेट को चलो x, y की जगह कुछ और रख दिया जाए. ठीक है, क्योंकि x, y इज वी टेकिंग जनरल coordinates of particle, right? So let us call this okay h, k ये बोल सकते हैं. ठीक है. सो देखो, अगर h, k इसको बोल दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, k इक्वल्स टू टेन एल्फा h माइनस जी एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा. ठीक है. और इसको व्हाट वी कैन से, दिस इज टेन एल्फा h माइनस एच स्क्वायर जी बाई 2u स्क्वायर, ऊपर जाके सेक स्क्वायर एल्फा हो गया, उसको वी कैन राइट 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा. ठीक है. अब इसको थोड़ा रीअरेंज किया जाए अगर, सो एच स्क्वायर जी अगर देखो इसको थोड़ा रीअरेंज किया जाए, एच स्क्वायर जी डिवाइड बाई 2u स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जी डिवाइड बाई 2u स्क्वायर टेन स्क्वायर एल्फा माइनस एच टेन एल्फा. ठीक है. प्लस के इक्वल्स टू 0. ठीक है. थोड़ा रीअरेंज किया है, दैट्स इट. ठीक है. अब देखो दिस इज क्वाड्रेटिक इन टेन एल्फा. ठीक है. इसको देखो ऐसा लिख सकते हैं, एच स्क्वायर जी डिवाइड बाई 2u स्क्वायर टेन स्क्वायर एल्फा राइट माइनस एच टेन एल्फा प्लस के टाइम्स प्लस एच स्क्वायर जी डिवाइड बाई 2u स्क्वायर इक्वल्स टू 0. सो इट्स ए क्वाड्रेटिक इन टेन एल्फा. ठीक है. सो द टू रूट्स आर पॉसिबल. सो there exist two values of alpha by which object or projectile can hit the point P. ओके. बट देखो ये हमेशा जरूरी नहीं है भाई, ये जो क्वाड्रेटिक है ऑफ कोर्स इसके जब रियल रूट होंगे देन ओनली इट विल हैव टू वैल्यूज ऑफ अल्फा. ठीक है. सो बेसिकली ये जो u है इस पे एक मिनिमम भी होगा, एक मिनिमम वेलोसिटी u की होगी. अगर उससे थ्रो करेंगे देन ओनली विल हैव टू डायरेक्शन एंड वी विल बी एबल टू हिट द ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो इसको भी कह सकते हैं कि इन जनरल, इन जनरल. ठीक है. ओके. अच्छा ये तो हो गया. यहाँ से व्हाट वी कैन से कि चलो देर आर टू वैल्यूज ऑफ एल्फा फॉर विच the point P can be hit given that u is constant. Of course the point of projection is also constant and the same vertical plane on all those stuffs. ठीक है. अब देखो अगर लिस्ट वेलोसिटी की बात की जाए, लिस्ट वेलोसिटी तो क्या होगी, इसको लेट्स कॉल इक्वेशन 1. ठीक है. टू हिट पॉइंट P इक्वेशन 1 मस्ट हैव रियल रूट्स. ठीक है. ऑफ कोर्स तो रियल रूट के लिए क्या होगा, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. अगर मान लो अल्फा की एक ही वैल्यू है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा. ठीक है. और अगर उसकी मोर देन वन वैल्यू है देन डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. सो देखो यहाँ से व्हाट वी कैन से कि अगर इस पे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस 4ac.
सो बी स्क्वायर क्या है इसमें, एच स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए इज दिस टर्म, एच स्क्वायर जी डिवाइड बाई 2u स्क्वायर, एंड सी इज दिस के प्लस एच स्क्वायर जी डिवाइड बाई 2u स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। अब बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए। देखो एच स्क्वायर तो थ्रू आउट कैंसिल हो रहा है, इसको व्हाट वी कैन से एच स्क्वायर, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट जीरो एंड दिस इज ग्रेटर देन जीरो, सो इसको कैंसिल, एच स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है एंड इट इज ऑफ कोर्स नॉट ग्रेटर देन जीरो, नॉट जीरो, ठीक है। एच का जीरो होने का मतलब क्या है, एक्स कॉम्पोनेंट जीरो हो गया, इसका मतलब तो पार्टिकल जहाँ से थ्रो कर रहे हैं वहीं पे ही पॉइंट है, दैट इज ए ट्रिवियल केस, राइट। तो इसमें एच स्क्वायर को कैंसिल किया जा सकता है, 1 माइनस 4g डिवाइड बाई 2u स्क्वायर के प्लस एच स्क्वायर जी डिवाइड बाई 2u स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और वी कैन से दैट के प्लस एच स्क्वायर जी डिवाइड बाई 2u स्क्वायर, दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 2u स्क्वायर बाई 4g, ऐसा बोल सकते हैं, राइट। ठीक है, अब इसको अगर u स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या लेट u स्क्वायर इक्वल्स टू t, so this is t divided by 2g minus h square g 2t minus k, this is greater than equals to 0, t से मल्टीप्लाई किया जाए, so this is t square t, right, so this is t square minus h square 2g से भी अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए माइनस 2g के t, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 2g से मल्टीप्लाई किया, सो ठीक है, माइनस 2g के लिया। अब देखो अब इसमें इसको थोड़ा अगर वो टी स्क्वायर माइनस 2g के टी माइनस एच स्क्वायर जी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और टी माइनस हाफ ऑफ दिस जी के, इस ऐसे किया जाएगा, ठीक है। सो टी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर के स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस ये तो है ही, माइनस एच स्क्वायर जी स्क्वायर इज ऑलरेडी देयर, और वी कैन से दैट टी माइनस जी के होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, राइट। ओके, अब देखो ये टर्म तो पॉजिटिव है, ठीक है, और टी क्या है, टी इज यू स्क्वायर, टी इज यू स्क्वायर, सो यू स्क्वायर माइनस जी के विल बी ग्रेटर देन रूट ऑफ दिस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं, बिकॉज ये पॉजिटिव टर्म है, ठीक है। यू स्क्वायर माइनस 2g, एच मीन्स ये हाइट, ये क्या है, ये मैंने डिस्कस किया था इनिशियली जब प्रोजेक्टाइल डिस्कस किया है कि यू स्क्वायर इक्वल वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh इन प्रोजेक्टाइल, किसी भी पॉइंट पे ऐसा होगा, तो जब ये वी स्क्वायर है इसका मतलब दिस टर्म विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। सो यू स्क्वायर माइनस 2g के जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। वी हैव सीन दैट यू स्क्वायर माइनस 2g के जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ से वी कैन से दैट यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2g के, ठीक है। तो यू स्क्वायर माइनस जी के की बात की जाए तो दैट विल बी ग्रेटर देन जी के, बट दिस इज पॉजिटिव ऑफ कोर्स, सो फ्रॉम दैट वी कैन से दैट दिस टर्म विल बी पॉजिटिव, यू स्क्वायर माइनस जी के ही यहाँ से बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी के प्लस रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, आई होप समझ में आता है। और वी कैन से दैट यू की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, दैट विल बी रूट ऑफ जी के प्लस रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी वी नीड टू हिट अ टारगेट, ठीक है, पॉइंट पी। और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो देखो हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल है वो ऐसे हैं, ये पॉइंट पी है जिसके की कोऑर्डिनेट एच कोमा के है, सो ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस के है, ये डिस्टेंस एच है, ठीक है। और ये वेलोसिटी यू से यहाँ से एल्फा एंगल पे हमने इसको प्रोजेक्ट किया है। सो देखो यू जो मिनिमम आया हमारे पास वो आया रूट जी के प्लस रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये आया। अब मान लो इस पॉइंट को अगर ओ बोल दिया जाए, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को, ठीक है, ओ इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन,
प्रोजेक्शन, ठीक है ना, एंड पी जो है टारगेट है हमारा, टारगेट पॉइंट है, ठीक है। तो ओपी क्या होगा, ओपी डिस्टेंस फॉर्मूला से वी कैन से दिस इज रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इफ दिस इज द ओरिजिन, दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, वी आर टेकिंग एट ओरिजिन, ठीक है, दिस इज वाई। सो और ये के क्या है, अगर ये जो भी वर्टिकल हाइट है ये तो के होगी, तो अगर इसको इससे मिला दिया जाए तो दिस इज ओपी, इसको अगर क्यू बोल दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट रूट ऑफ जी पी क्यू प्लस ओ पी, दिस इज द यू मिनिमम, ठीक, आयो समझ में आता है। सो जब भी मिनिमम यू मिनिमम पूछा जाएगा दैट विल बी नथिंग बट रूट ऑफ जी एंड सम ऑफ दिस एंड दिस हाइट, दिस डिस्टेंस एंड दिस हाइट, ठीक है। सो इसमें इस पे बेस्ट क्वेश्चन आएगी तो वी कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो ये तो हमने देखा कि जो हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल था जिस टारगेट को हिट करना था दैट वाज अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। अगर मान लो ये जो हमारा द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ the means the plane horizontal plane through the point of projection, if the target is below that, तो देखो इस केस में क्या होगा, ये डिस्टेंस मान लो के है, ये डिस्टेंस अगेन एच ही है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एच कोमा माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पे के था वहाँ माइनस के हो जाएगा बस, तो यू मिनिमम क्या हो जाएगा, यू मिनिमम वाज रूट ऑफ जी के प्लस रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में के की जगह माइनस के करना है, इधर तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो दिस विल बी जी, जैसे ये तो ओपी था, ये माइनस क्या है पी क्यू, तो यहाँ माइनस हो जाएगा सिंपल, ठीक है, आयो भी समझ में आता है। ओके सो अच्छा, इसमें देखो एक चीज और देख सकते हैं, इसमें देखो हम व्हाट वी सो कि इफ this a projectile is projected at angle of elevation alpha with velocity u to hit a point p जिसके की कोऑर्डिनेट h, k है, then there are the there are possibilities of two values of alpha, ठीक है, provided we have taken u as constant, the point of projection is constant, the projectile is in the same vertical plane, ठीक है। तो इसके लिए टू जो है प्रोजेक्शन होंगे, तो इसका मतलब जो टाइम भी लगेगा हमें इस टाइप होंगे, इस टाइप के टू प्रोजेक्शन पॉसिबल है, अगर मान लो अल्फा 1 है ये अल्फा 2 है, बाय द सेम वेलोसिटी वी प्रोजेक्ट ए पार्टिकल देन देयर आर टू वैल्यूज ऑफ अल्फा for which it is possible to hit this point P provided there is a minimum velocity, right। अच्छा, इसका मतलब यहाँ से मान लो टाइम t1 लग रहा है इस रूट के थ्रू और इस रूट के थ्रू, इसके t1 लग रहा है मानो इसके थ्रू t2 लग रहा है, तो टाइम भी रहेंगे, ठीक है। तो टाइम की इक्वेशन भी वी कैन गेट, राइट। वो कैसे होगी देखो सिंपल है, उसको ऐसे किया जा सकता है, जो हमारे पास ऐसे प्रोजेक्टाइल है, दिस इज पॉइंट P, h, k, दिस इज P, दिस इज वेलोसिटी u एंड दिस इज एंगल अल्फा, ठीक है। ओके बस अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो x क्या हो जाएगा, ये जो h है मान लो यहाँ तक जाने में टाइम t लगा, सो h विल बी u cos अल्फा t एंड k जो है वो क्या हो जाएगा u sin अल्फा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सिंपल है, तो हमने प्लेंटी ऑफ टाइम किया, इनफैक्ट इसी से t एलिमिनेट करके वी गेट द ट्रेजेक्टरी, ठीक है। बट अभी हमें चाहिए t, ठीक है, और मान लो ये अभी हमें क्या है अल्फा तो वेरी कर रहा है, सो अल्फा को एलिमिनेट करना है, अल्फा को एलिमिनेट करना है, ठीक है। h एंड k आर फिक्स्ड बिकॉज दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ p, तो देखो यहाँ से वी कैन से व्हाट वी कैन से दैट cos अल्फा इज h डिवाइड बाय ut, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ से k इक्वल्स टू ut sin alpha can be written as root 1 minus h square u square t square minus 1 by 2 gt square, ठीक है। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए तो k प्लस 1 by 2 gt square का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू u square t square, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो u square t square माइनस h square, ये आ गई हमारे पास। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए k स्क्वायर प्लस 1 by 4 g स्क्वायर t की पावर 4 प्लस जी के टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो
अब यहाँ से what we can say is this, यहाँ से we can say कि देखो t की पावर 4 है तो 1/4 g t की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर, ये एक तो टर्म ये है, एक ये टर्म है, ठीक है। और इसको अगर इधर ले जाया जाए तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया। यहाँ से व्हाट वी कैन से, दिस इज अगेन क्वेड्रेटिक इन टी स्क्वायर, ठीक है। अब टी स्क्वायर की जैसे भी कोई भी वैल्यू आएगी, मान लो 5 आ गई, तो उसमें ऑफ कोर्स नेगेटिव तो रिजेक्ट करेंगे, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, सो बेसिकली देखा जाए तो इस इक्वेशन के दो ही रूट होंगे ओवरऑल, पावर 4 है बट रूट 2 ही होंगे, ठीक है। सो ये इसका मतलब टी स्क्वायर को लेटस से सम लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा जी लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस लैम्डा जी के माइनस यू स्क्वायर plus h square plus k square equals to 0. So it has two roots, or we can say by the equations of by the theory of equations, इसके सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, अगर मान लो इसके सम जो रूट्स है वो लेमडा 1 कोमा लेमडा 2 है, सो लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 विल बी माइनस बी, ठीक है, डिवाइड बाई ए, एंड लेमडा 1 लेमडा 2 क्या होगा सी बाई ए, दैट इज एच स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड बाई ए, दिस इज जी बाई 4 अगेन, ठीक है। पर देखो लेमडा 1 इटसेल्फ इज ए टी स्क्वायर, सो टी 1 स्क्वायर टी 2 स्क्वायर ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको भी कैन से टी 1 स्क्वायर प्लस टी 2 स्क्वायर, ठीक है। सो दे आर आल्सो यूज्ड इन सम क्वेश्चंस इनफैक्ट। यहाँ से व्हाट वी कैन से कि इनफैक्ट वही है, जब टू पाथ है टू हिट पॉइंट पी, देन ऑफ कोर्स देयर विल बी टू टाइम्स, मींस देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ टाइम टू हिट दैट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, टी 1 टी 2 क्या हो जाएगा, रूट 4 तो हो गया 2 डिवाइड बाई रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई जी, ऐसा भी बोल सकते हैं। और देखो ये ऐसा ही तो पॉइंट था, यहाँ पे ये पॉइंट पी था जिसके कोऑर्डिनेट एच कोमा के हमने बोला था, ये पॉइंट ओ है जहाँ से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये मान लो ये एच के है, तो ये जो डिस्टेंस है ये यही तो होगी रूट एच स्क्वायर के स्क्वायर, सो इसको वी कैन डायरेक्टली राइट टू रूट ऑफ ओ पी बाई जी। अच्छा दिस इज जी स्क्वायर राइट, ये जी स्क्वायर है, ठीक है। तो बेसिकली ये हर जगह जी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे दिस इज जी स्क्वायर, दिस इज जी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जी स्क्वायर है। अच्छा देखो ये रूट रहेगा ही नहीं एक्चुअली इसमें, दिस इज सिंपली दिस, ठीक है, क्योंकि रूट एच स्क्वायर प्लस रूट के स्क्वायर इज नथिंग, रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज ओपी डिस्टेंस फॉर्मूला से वी कैन से, और ये जी स्क्वायर है तो ये हो गया, सो टी 1 टी 2 दिस, ठीक है। और ये तो जी स्क्वायर है, इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसको वी कैन राइट 4 टाइम्स यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर माइनस के डिवाइड बाई जी, ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ दो, ठीक है। So let us do some questions based on these concepts. If alpha 1 and alpha 2 are two directions to hit a given point h comma k, then prove that tan alpha 1 plus alpha 2 is equals to minus h by k. Okay. So देखो ये तो सिंपल है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि there are two angles or two values of alpha for which point p can be hit. Okay. Provided the initial velocity is constant. Okay. So the same concept will be used here. Okay. Projectile trajectory, this is given by y equals to x tan alpha minus g h square divided by 2u square cos square alpha, that is sec square alpha, that can be written as 1 plus tan square alpha, ठीक है। अब देखो h कोमा k जो पॉइंट p है उसके कोऑर्डिनेट है will lie on above trajectory, then only it will be hit by the projectile, right? तो अगर ये इसमें जैसा कि ये तो डिस्कस भी किया है, k इक्वल्स टू एच टेन एल्फा माइनस जी एच स्क्वायर डिवाइड बाई जी यू स्क्वायर माइनस जी एच स्क्वायर डिवाइड बाई टू यू स्क्वायर टेन स्क्वायर एल्फा, जस्ट वैल्यू पुट कर दी। अब देखो देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ एल्फा, एल्फा 1 एंड एल्फा 2, राइट।
टू हिट दैट पॉइंट पी। ठीक है, सो इसको अगर थोड़ा रीअरेंज कैसा है तो दिस इज जी एच स्क्वायर डिवाइड बाई टू यू स्क्वायर टेन स्क्वायर एल्फा। ठीक है, इसको इधर ले लिया जाए, सो माइनस एच टेन एल्फा प्लस के प्लस जी एच स्क्वायर डिवाइड बाई जी एच स्क्वायर डिवाइड बाई दिस इज टू यू स्क्वायर, राइट, टू यू स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, एज टेन एल्फा वन and tan alpha 2 are roots of this equation because these are the two angle of projection, or basically these are the two angle of projection through which if a particle a object is thrown, ठीक है, then it will hit that point P। तो यहाँ से theory of equation से we can say theory of equations sum of roots tan alpha 1 plus tan alpha 2, tan alpha 1 and tan alpha 2 are the roots of the equation, so sum of these roots will be minus b divided by a upon 2u square, and tan alpha 1 into tan alpha 2, that is multiplication of root will be c by a, that is k times 2u square plus gh square divided by gh square। आई होप समझ में आता है। अब हमें चाहिए tan alpha 1 plus tan alpha 2। ठीक है, so tan alpha 1 plus alpha 2 is nothing but tan alpha 1 plus tan alpha 2 divided by 1 minus tangent of alpha 1 and tangent of alpha 2। बस वैल्यू पुट कर देनी है, सम का तो वैल्यू ये टू यू स्क्वायर एच डिवाइड बाई जी एच स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस टेन एल्फा 1 टेन एल्फा 2 की वैल्यू ये टू यू स्क्वायर के प्लस जी एच स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड बाई जी एच स्क्वायर तो यहाँ से ही आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए थोड़ा, तो इससे तो ये हो गया कैंसिल, सो दिस इज माइनस एच बाई के, सो टेन एल्फा 1 प्लस एल्फा 2 इज दिस, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करवाना था, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, जस्ट ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन से हो गया, देन वी आर टू सी दैट द सम ऑफ रूट्स will be minus b by a and multiplication of roots will be c by a in a quadratic equation, ax square plus bx plus c, right? Okay, let us discuss this question. 2 points A and B are at a distance b apart such that their height above the ground are h1 and h2. Find the least velocity needed to throw a particle from the ground so that it could cross both the heights. Okay, it is given that h2 is greater than h1। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, सो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। इज सिंपल, जो हमने यू लिस्ट वेलोसिटी, जो लिस्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, इट इज बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो बेसिकली दिस लेट अस से दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये एक पॉइंट ए है, इसकी हाइट इज h1। ठीक है, एंड दिस इज अ पॉइंट b, इसकी हाइट इज h2 एंड द डिस्टेंस दिस इज b, distance between A and B is given as B, this distance is B। ठीक है, अच्छा, this I have discussed that if this is height h and this is point of projection, let us say this is point P जिसके coordinate h, k है। if a particle is projected from here with velocity u at angle let us say alpha, let us say this particle is projected to hit at point P with velocity u and angle of projection alpha, then we know कि जो u की minimum value होती है, that I discussed, that is nothing but g this height h plus ये जो distance होगी o से इस p की। ठीक है, if the point o if the point p is above the plane of above the horizontal plane and if this point p is below the horizontal plane, then this h will be, this is not h, in fact this is the y coordinate, right? So this is k, this is k, right, y coordinate, so this k plus op। ओके, आई होप समझ में आता है। सो जैसे ही अगर ये यहाँ पे होता मान लो पॉइंट पी बिलो द हॉरिजॉन्टल प्लेन, देन इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो माइनस के होता, तो यहाँ पे माइनस के हो जाता, दैट्स द ओनली डिफरेंस। ठीक है, तो अब देखो इसमें एक कैच है, अगर ये देखो मान लो यहाँ से पार्टिकल को हमने थ्रो किया तो वो ऐसे ग्रेज होके ऐसे जा रहा है कि इट इज एबल टू क्रॉस बोथ द साइड्स। ओके, सो लेट यू ए बी द मिनिमम velocity of projectile
needed to cross height h2, ठीक है. Let UA be the minimum velocity at where? At point A, ठीक है. Let us assume that UA is a least velocity here, so that this particle is able to cross this height h2. तो देखो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इसको देखा जाए तो ये पार्टिकल है, यहाँ से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग, एंड दिस इज एबल टू क्रॉस दिस हाइट h2. मतलब अगर देखा जाए तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया, h2 माइनस h1, दिस इज h1, दिस इज h2, दिस इज h2 माइनस h1. और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो ua है मिनिमम, हमने ua या va बोल दिया, ua, ठीक है. तो ये ua की वैल्यू क्या होगी, ua इज इक्वल टू, बिकॉज ua इज द मिनिमम वेलोसिटी एट दिस पॉइंट a, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, दैट इज रूट ऑफ जी के मीन्स हाइट, दैट इज h2 माइनस h1 प्लस ये जो डिस्टेंस है पॉइंट बी की, ये तो बी है डिस्टेंस, सो दिस इज बी. सो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी एट ए, ठीक है. हमें पूछिए मिनिमम वेलोसिटी एट द ग्राउंड, जहां से लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है. तो देखो लेट यू बी द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एट ओ, ठीक है. देन वी नो दिस दैट किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी कैन बी रिटन एज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gs. ये इनिशियली आई डिस्कस व्हेन प्रोजेक्टाइल डिस्कस किया था. इसको u स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस 2gs ऐसा लिख सकते हैं. अब देखो अगर u की मिनिमम वैल्यू में चाहिए तो ये तो कांस्टेंट हो गई 2gh, h मीन्स हाइट, यहाँ पे जो हाइट है h1 है, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो इसकी जो हाइट है वो तो h1 है, ठीक है. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस 2gh1, राइट. हाँ ये हो गया 2gh1, ठीक है. अब u मिनिमम देखो ये पार्ट तो फिक्स है, h1 हाइट इज फिक्स, g इज एनीवे फिक्स, so u विल बी मिनिमम व्हेन v विल बी मिनिमम, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं. पर देखो u मिनिमम जो है स्क्वायर इक्वल्स टू v मिनिमम मीन्स 8 पॉइंट a की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है. तो पॉइंट a पे जो v की मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, दैट इज ua, तो ua स्क्वायर प्लस 2gh1, ठीक है. अब देखो ua की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, दैट इज g ua स्क्वायर, सो gh2 माइनस h1 प्लस b प्लस 2gh1, और वी कैन से दैट u मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू g ले लो कॉमन, h2 माइनस h1 प्लस 2h1, दैट इज h1 प्लस h2, राइट. और या ये तो इसके अंदर है g थ्रू आउट मल्टीप्लाई है ये, ठीक है. सो दिस इज प्लस b, सो u मिनिमम क्या हो जाएगी, दैट इज नथिंग बट g h1 प्लस h2 प्लस b का रूट. दिस इज द आंसर. ओके, आई होप समझ में आता है. सो इट्स अ गुड क्वेश्चन. इनफैक्ट इसमें बस ये कैच था कि ए जो है, ए पे हमें मिनिमम वेलोसिटी देखनी थी इसकी. अगर ए पे पता होगी तो बाद में तो वी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, ठीक. तो आई होप समझ में आता है इसमें. अच्छा अभी जो पोर्शन बच गया इसमें वो आई विल टेक इन नेक्स्ट लेक्चर. इनफैक्ट इसमें बच गया इंक्लाइंड प्लेन पे. इंक्लाइंड प्लेन पे जो अगर मोशन होगा प्रोजेक्टाइल का तो उसकी रेंज क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, बहुत इजी टॉपिक है इनफैक्ट, ठीक है. और एक होता है एनवल्फ ऑफ प्रोजेक्टाइल. ये दोनों आई विल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर.